Hello everyone. Our next topic is learning set of rules. So we have already discussed in genetic algorithm that there is one way to represent the hypothesis, which is if then rules. So if then rules is a very expressive representation of the hypothesis and very easily understandable representation. So in this session we will study about learning set of rules. Okay, so this if then rules, if you remember, we have studied in decision tree also, in which first we create the decision tree and translate that decision tree into if then rules, because we have studied that if then rules are very easy and expressive to understand, and that's why we turn the decision tree into if then rules. Now the second method where we have used if then rules are in GA. Just we have studied about genetic algorithm, in which we represent our hypothesis in a bit string, and that bit string is represented in if then. There also we represent the if then rules to represent the hypothesis. So in this chapter we learn the rules in different manner. Here we learn the first order rules that contain variables. So we have studied first order rules where we have not contained variables, but here we learn the first order rules that contains variables. Here some algorithms are included that will help to learn one rule at a time, which is called sequential covering algorithm, and incrementally grow to the final set of rules. So first we have learned in this we have learned one rule, and then incrementally we grow, and finally set of rules, we have find out set of rules to learn. So here we learning the first order Horn clause is called inductive logic programming. So this is a type of first order rule which we call first order Horn clause, and learning this kind of first order Horn clause is called inductive logic programming. Now let's start sequential learning algorithm. Basically, what is this sequential learning algorithm? So here learning one rule at a time that accepts set of positive and negative training examples. So the main thing which we have to consider here is that this particular learning algorithm learn one rule at a time, and it accepts positive and training examples both as an input, and output a single rule that covers many positive training example and few negative training examples. So it depends on both the training example, positive and negative, and it learns one rule at a time and outputs a single rule that covers many training examples or few negative training example. So there is one concern about the output, is that the output should have always high accuracy and low coverage. Now what does it mean by high accuracy? Means whatever the prediction it makes, that prediction is always correct, then we can say that the accuracy is very high. And low coverage means it's not necessary that the prediction it makes cover all the training example. If most of the training example give the correct prediction, we will say that the accuracy is high. So that's why we say that it gives low coverage. It doesn't mean that we cover all the training example. If some of the training example predict it as let's suppose it predicted as yes target value, then it will give you the high accuracy. Okay, now this approach is most widespread approach to learn the disjunctive set of rules. Now let's see the algorithm. algorithm में क्या क्या चीज़ दी हुई है? इट्स अ सिक्वेंशियल कवरिंग algorithm, जिसमें एज एन इनपुट हम टारगेट एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं कि मुझे टारगेट वैल्यू क्या लर्न करानी है. मेरे जितने भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं, हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के एट्रीब्यूट्स और एक थ्रेशोल्ड वैल्यू. थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब क्या है, ये अभी हम आगे देखेंगे अपने इसमें एल्गोरिथम
एल्गोरिथम में नाउ लर्नड रूल्स, अभी तक हमने कोई भी रूल लर्न नहीं किया है तो एक एम्प्टी सेट दिया हुआ है और जैसे जैसे हम एक एक करके रूल को लर्न करते जाएंगे उसको हम ऐड करते जाएंगे लर्नड रूल के अंदर। नाउ रूल के अंदर इन्होंने एक फंक्शन कॉल किया है लर्न वन रूल। तो ये लर्न वन रूल आपका एक फंक्शन है जो ट्रेनिंग एग्जाम्पल को एक एक करके जो ट्रेनिंग एग्जाम्पल है उसमें से रूल को लर्न करता है। नाउ इसमें इनपुट में क्या क्या आपको एट्रीब्यूट्स पैरामीटर्स दिए हैं, टारगेट एट्रीब्यूट कि टारगेट एट्रीब्यूट क्या होगा, इनपुट एट्रीब्यूट क्या होगा और कौन सा एग्जाम्पल होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के एट्रीब्यूट से और उसकी टारगेट वैल्यू से हम एक रूल जो है वो लर्न करेंगे। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस, नाउ सी वाइल ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इफ द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रूल इज़ ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड। नाउ अब हमें कोई एक वैल्यू सेट करनी पड़ेगी कि परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर वैल्यू से ग्रेटर है, मतलब उसका फिटनेस ज़्यादा है। जो भी रूल हम लर्न कर रहे हैं, हाइपोथेसिस लर्न कर रहे हैं, अगर उसका हाइपोथेसिस का फिटनेस एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है तो वो एक्सेप्टेड है, अदरवाइज़ वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे उस रूल की और उस एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल से उस रूल को हमने लर्न किया है उस एग्जाम्पल से। अगर वो थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, लर्न रूल के अंदर उस रूल को ऐड कर देंगे और उस एग्जाम्पल को सेट ऑफ एग्जाम्पल्स, ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स में से रिमूव करेंगे और दोबारा से एक नया रूल को लर्न करने की कोशिश करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स से हमें रूल्स नहीं मिल जाते हैं। तो जब ये फाइनली रूल्स हमें मिल जाएंगे, इनको हम सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, सॉर्टेड ऑर्डर इन इंक्रीजिंग यू कैन से दैट परफॉर्मेंस। ठीक है, उनके परफॉर्मेंस के बेस पे हम उन्हें सॉर्ट कर लेंगे और वो सारे जितने भी लर्न रूल्स हैं वो हमें एज एन आउटपुट प्रोवाइड हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लर्निंग फर्स्ट ऑर्डर रूल। तो अब फर्स्ट ऑर्डर रूल्स को किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑर्डर रूल लर्न तो करना है लेकिन उन रूल्स के साथ हमें वेरिएबल्स को भी लर्न करना है, मतलब ऐसे रूल्स जिनमें वेरिएबल्स हों, ऐसे रूल्स को हमें लर्न करना है। इस तरीके के फर्स्ट ऑर्डर रूल्स को हम फर्स्ट ऑर्डर हॉर्न क्लॉज बोलते हैं। नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स टेक अ लुक ऑन द एग्जाम्पल। यहाँ पर एक टास्क लर्न करना है, जो एक सिंपल टारगेट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि लर्न क्या करना है कि x इज़ अ डॉटर ऑफ y और अगर ट्रू हुआ yes है, अगर x इज़ अ डॉटर ऑफ y तो ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल गिव यू अ फॉल्स। नाउ हमारे को ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स गिवन है, हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स में दो लोगों की आपको डिटेल दी गई होगी। जैसे इसके अंदर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें नेम 1 नेम 2। नेम 1 शेरॉन है, उसकी मदर लूसी है, फादर उसका बॉब है और मेल इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब जो नेम है शेरॉन वो मेल नहीं है, वो फीमेल है क्योंकि फीमेल 1 के बाद ट्रू लिखा हुआ है। सिमिलरली नेम 2 में बॉब लिखा है, उसकी मदर है नोरा, फादर विक्टर, मेल 2 उसका ट्रू है, फीमेल 2 उसका फॉल्स है। और उसमें एक और एट्रीब्यूट एडेड है, डॉटर 1, 2, 1 इज़ अ डॉटर ऑफ 2 इज़ ट्रू। नाउ ये जो ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, इनके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उससे हमें अपना टारगेट कॉन्सेप्ट चाहिए, मतलब हमें लर्न ये करना है कि x इज़ अ डॉटर ऑफ y। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर आपका एक एट्रीब्यूट कम आएगा, डॉटर 1, 2। अगर ट्रू है तो डॉटर x, y ट्रू होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो अब इसे लर्न कैसे करना है बेसिकली, तो हम क्या रूल बना सकते हैं, अगर फादर 1 बॉब है एंड नेम 2 बॉब है, ठीक है, एंड आपका फीमेल 1 अगर ट्रू होगा तो हम कह सकते हैं कि डॉटर 1, 2 इक्वल्स टू ट्रू। तो नाउ द प्रॉब्लम हेयर इज़ कि जो प्रिपोजिशनल रिप्रेजेंटेशंस है ये कोई जनरल वे नहीं डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, वेरिएबल्स को यूज़ करना पड़ता है। नाउ दिस पर्टिकुलर रूल इज़ डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ओनली, जो कि हमने दिया हुआ है। लेकिन अगर हमें कोई एक जनरल रूल बनाना है जो कि किसी भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे वर्क करेगा तो उसके लिए हमको वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ेंगे और दैट्स वाई इस जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम फर्स्ट ऑर्डर हॉर्न क्लॉज कहते हैं, क्योंकि उसमें हम वेरिएबल्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जस्ट सी द एग्जाम्पल, हमने क्या लिखा है, इफ़ फादर x, y, अगर आपका x इज़ अ फादर ऑफ y एंड y इज़ फीमेल, देन वी से दैट कि x इज़ अ डॉटर ऑफ y।
तो यहाँ पर x y जो है दे आर वेरिएबल्स और दे कैन बाउंड टू एनी पर्सन, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से रिलेटेड है, दिस कैन बाउंड टू बी एनी पर्सन. नाउ फर्स्ट ऑर्डर हॉर्न क्लॉजेस जो है इट मे ऑल्सो रेफर्स टू द वेरिएबल्स इन द प्री कंडीशंस दैट डू नॉट अकर इन पोस्ट कंडीशन. दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे सेड दैट कि जो फर्स्ट ऑर्डर हॉर्न क्लॉज है वो उसमें कई सारे ऐसे भी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें कि प्री कंडीशन में जो वेरिएबल प्रोवाइड किया होता है ज़रूरी नहीं है कि पोस्ट कंडीशन में वो वेरिएबल आपको प्रोवाइड किया हो या फिर वो वेरिएबल अकर हो रहा हो. लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं ग्रैंड डॉटर का, तो जस्ट सी इट, जो इफ़ के बाद वाली कंडीशंस हैं उनको हम प्री कंडीशन कहते हैं, जो देन के बाद वाली कंडीशन है उनको हम पोस्ट कंडीशन कहते हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर हॉर्न क्लॉज यही कह रहा है कि ये कई बार ऐसे वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करता है जो कि प्री कंडीशंस में होते हैं और पोस्ट कंडीशंस में वो अकर नहीं होते हैं. तो नाउ सी ओवर हियर, यहाँ पे z एक वेरिएबल लिया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एंसेस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये z वेरिएबल जो है पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, और ये z वेरिएबल जो है ये पोस्ट कंडीशन में आपका अकर नहीं हो रहा है. तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज़ प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट ऑर्डर हॉर्न क्लॉज. यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं उसमें आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं जैसे कि बॉब एंड लूसी, वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं एक्स एंड वाई, प्रेडिकेट सिंबल यूज़ हो रहे हैं जैसे कि मैरिड, ग्रेटर देन, और फंक्शंस यूज़ होते हैं जैसे कि एज. सो ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं ये हम यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑर्डर हॉर्न क्लॉजेज़ में. तो रिपीट कि इसके अंदर आपके फंक्शंस यूज़ होते हैं, आपके प्रेडिकेट सिंबल्स यूज़ होते हैं और कांस्टेंट भी यूज़ होते हैं टू रिप्रेजेंट अ हाइपोथेसिस इन फर्स्ट ऑर्डर horn clauses. Now what is the main difference between the predicate and function? Predicate take on value true and false and function can take on any constant as their value. तो बेसिकली अगर कोई भी फंक्शन जो है अगर ट्रू या फॉल्स वैल्यू दे रहा है तो वो प्रेडिकेट है, और अगर किसी को हम फंक्शन कहेंगे तो वो कोई भी कांस्टेंट या उसकी वैल्यू को क्या दे सकता है, आउटपुट में दे सकता है. नाउ जो लोअर केस में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, जो कैपिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो कांस्टेंट्स होते हैं. लोअर केस में फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल फॉर्म में प्रेडिकेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो दीज आर द रूल्स टू रिप्रेजेंट द हाइपोथेसिस इन फर्स्ट ऑर्डर हॉर्न क्लॉज. तो प्रेडिकेट एंड फंक्शंस के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया. वेरिएबल्स इन लोअर केस एंड कांस्टेंट इन कैपिटल फॉर्म, फंक्शंस इन लोअर केस एंड प्रेडिकेट्स आर इन कैपिटल फॉर्म. नाउ जब भी हम कोई एक्सप्रेशन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं तो द टर्म इन एनी कांस्टेंट वेरिएबल और एनी फंक्शन अप्लाइड टू एनी टर्म, जैसे कि x इज़ अ टर्म, बॉब इज़ अ टर्म एंड एज बॉब इज़ अ टर्म, और अ लिटरल इज़ अ प्रेडिकेट और द निगेशन अप्लाइड टू एनी टर्म. कोई भी लिटरल जो है वो एक प्रेडिकेट होता है और उसका निगेशन भी अप्लाई हम कर सकते हैं. तो नेगेटिव लिटरल्स जो होते हैं दैट कंटेन निगेशन, अदरवाइज इट इज़ अ पॉजिटिव लिटरल. तो क्लॉज इज़ अ डिसजंक्शन ऑफ लिटरल और अ हॉर्न क्लॉज इज़ कंटेनिंग एट मोस्ट वन पॉजिटिव लिटरल. तो जो क्लॉज होता है उसके अंदर जितने भी लिटरल्स जो है उनका डिसजंक्शन रिप्रेजेंट होता है, और हॉर्न क्लॉज के अंदर एट मोस्ट वन पॉजिटिव लिटरल होना ज़रूरी होता है. नाउ हॉर्न क्लॉज प्री कंडीशनिंग आर कॉल्ड क्लॉजेस. जो हॉर्न क्लॉज की प्री कंडीशंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लॉजेस कहते हैं. क्लॉज बॉडी कहते हैं एंड क्लॉज एंटीसीडेंट्स बोलते हैं. जो पोस्ट कंडीशंस होती हैं हॉर्न क्लॉज की उनको क्लॉज हेड कहते हैं और क्लॉज कॉन्सिक्वेंट कहते हैं. जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल. Now this is the final topic in learning set of rules. It is learning the set of first order rule which is called FOIL. Now this is a program or algorithm which is very similar to a sequential cover algorithm. जैसे कि sequential cover algorithm है जो कि one by one rules को learn करती है and output में set of rules provide करती है. Similarly FOIL भी is a type of algorithm जो काफ़ी इससे similar है और आप कह सकते हो कि it is a extension of learn one rule algorithm.
सो बेसिकली यूज़ टू लर्न फर्स्ट ऑर्डर रूल्स, और हॉर्न क्लॉज रूल्स को लर्न करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। और अगर हम देखें, यू जस्ट सी द एल्गोरिथम ऑफ फॉयल एल्गोरिथम। फॉयल एल्गोरिथम को आप देखेंगे तो इसके अंदर 2 लूप्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इसमें एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है। ओके जो आउटर लूप है वो आपका सीक्वेंशियल कवरिंग एल्गोरिथम की तरह वर्क करता है, जिसमें कि हम हर एक रूल को एट अ टाइम लर्न करते हैं, और जिस भी रूल को हम लर्न करते हैं उसके एग्जाम्पल को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट रूल को लर्न करते हैं। ओके नाउ जो इनर लूप है वो आपका लर्न वन रूल के एल्गोरिथम की तरह चलता है, और यू कैन से दैट कि जो इनर लूप है इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ लर्न वन रूल एल्गोरिथम। और ये किस तरीके से काम करता है, ये वही रूल्स को देखता है जो कि टारगेट वैल्यू एज अ ट्रू प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ओके तो जिनका भी टारगेट वैल्यू ट्रू होगा उनका ही रूल जो है वो लर्न करेगा। बेसिकली ये बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम, सर्च एल्गोरिथम फॉलो करता है, जो कि है सिंपल हिल क्लाइंबिंग सर्च। ओके तो जो आउटर रूल है, जो आउटर लूप है वो हाइपोथेसिस स्पेस में से स्पेसिफिक से जनरल हाइपोथेसिस को सर्च करता है, ठीक है, और जो इनर लूप है वो आपका जनरल टू स्पेसिफिक सर्चिंग करता है हाइपोथेसिस की। नाउ वन मोर डिफरेंस बिटवीन दीज टू आपके जो लूप्स हैं, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, वो ये है कि जो आपका आउटर लूप है, ठीक है, वो हमेशा जब भी एक नया रूल ऐड करेगा, जो लर्न रूल वाला हमने एक देखा था कि हमने एक एरे लिया था जो कि एम्प्टी सॉर्ट ऑफ एरे था, जिसके अंदर हम रूल्स को ऐड कर रहे थे। तो ये जो आउटर लूप है ये हमें आउटपुट में देता है डिसजंक्शन ऑफ ऑल द हाइपोथेसिस। जो भी नए रूल में ऐड होगा वो हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, डिसजंक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस। ओके और जो इनर लूप है वो जब सारे लर्न्ड लूप्स को कलेक्ट करता है तो वो कंजंक्शन के फॉर्म में उसको कलेक्ट करता है।